हम कर लेते हैं सर। सौम्या। Yes, sir. हाँ Good evening, sir. गुड इवनिंग। कैमरा ऑन करिए अपना। हाँ ऑन कैमरा No ऑन है camera. On is camera. ऑन है ओके सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So I'm Soumya Kumari, born and brought up in Patna. I've completed my graduation in English literature, and after that, I've done my LLB from Banaras Hindu University in 2018. And after that, I'm preparing for judiciary and civil judge and PCS and other legal examination. Apart from this, my interests are reading books, traveling, and dancing. So other kinds of examination means? Means like, sir, APO and judicial service examination of other states. So your main dream is in order to become an assistant prosecuting officer. Sir, I can say I'm very interested toward this field. So firstly, my first preference is civil judge. Your first preference is a civil judge. Civil judge, sir. Okay. So why you're aspiring and wasting your time? I'm not wasting my time. This will also make me, I'll be engaged with law and legal field, and this is my mainly I'm attracted towards legal field. So this will give me opportunity to enhance my career. So you are just engaging yourself for the sake of engaging No, sir, yourself. You are just going to join this. No, sir. It's always fascinated me. Plus, I'll be able to provide justice. So through APO, I'll be helping others or who are in need of legal justice or any legal knowledge or justice. And through being a judge, I can also provide justice. So which to would the be the people most who is preferable? Sir, both. But if I get a chance to become a civil judge, so I'll choose being a civil judge. So I think it is just a part time for you. No, sir, not part time. I cannot say part time. I prepared for it. Okay. So what is a prosecuting officer? So prosecuting officer, sir, I think section 25, if I'm not wrong, define prosecuting officer. Prosecuting officer also advocate appointed by state government or central government to present cases in behalf of government or help police officer in investigation and trial. So what kind of a help which public prosecutor assists? Sir, public prosecutor help police in investigating the case to bring the evidence or other kind of proofs in front of court so that timely justice delivered to the victim and also a fair trial to the accused person. So is there any provision under the CRPC where the public prosecutor assists the investigating officer? Any investigating officers can be a public prosecutor? Sir, no, there's no provision as far as I remember. I may be mistaken, but I know there's no provision. Exact No, provision. my question is, any investigating officers who has conducted the investigations can be a public prosecutor? So if I'm not understanding, you're asking, can any investigating officer be role of public prosecutor? Be in a role of public prosecutor. Can be a public prosecutor regarding this.
Sorry, yes, I'm not sure about the exact number of the section, but yes, with the consent of I think with the consent of the magistrate or respected high court, yes, if they allow, a police officer can do the work of public prosecutor. High Court or Uh, uh, Judicial magistrate. Oh, sorry, sir, maybe central government. Central government. okay, under which I'm section? not sure. Sir, section I can't tell, sir. Sorry, sir. So you have to So, sir, substantiate your answers with the facts, okay, sir, I'll or with read the on that. provision. Sure, sir. Sorry, sir. Okay. So, what is the duty of or a function of the public prosecutor? Sir, collecting evidence or presenting it before the with the help of police officer or investigating officer, or bring the evidence in front of the court or in front of the judge, and on the basis of this providing. नहीं अभी टाइम लगेगा ना Oh, लेते हैं oh, बस गेट को जाने दो yes, Soumya. Sir, should I start? Okay, sir. Present the evidence or proof in front of a court, in front of a judge, or provide justice to the victims, and apart from this, they represent the Justice is case in provided behalf by of the the public government. prosecutor or court? So, no, sir, provided by the court, but they supplement, they help the court, or I can say they supplement, they provide evidence or bring the evidence which are not in the notice of the court to them. So the justice is provided to the victim, and at the same time, they represent government also, So in this is case the where duty of the government is public the prosecutor. party. So this is the Yes, duty sir. of the public prosecutor. Any other duty Yes. apart from the supplementing the justice? So supplementing the justice or representing the state government Hmm. in behalf of the government. So it is responsibility of the public prosecutor. Yes, sir. Assisting. Assistant public So victim prosecutor. In can be appointed. Victim. Sir. Just Sir? wait. Sorry, sir. Victim can appoint any pleader. Is there any provision? If the victim wants to appoint a pleader, can appoint? So they can appoint, but if the government is party, there must be a public prosecutor or assistant public prosecutor. So my question is, Yes. what is my question? So is there any provision? Victim can appoint a pleader? Yes, sir. They can appoint. So public prosecutor. So there's no provision about they can appoint a pleader. I haven't went through So any if there is no any provision, how you can appoint? How the victim can appoint if there is no provision? Sorry, sir, I don't know much about. Have you read the section 301 of the CRPC? No, sir, sorry. Sir. I'll read on that. Okay. Section 308. Have you read 308 of the CRPC? No, sir. Sorry, sir. Where the public prosecutor certified that the accomplice has just reached to comply the duty of tendering the evidence. I'm just giving you a hint. Sorry, sir, I'll read on that. No. Have you read the section 25A of the CRPC where it is mentioned Directorate of the Prosecution?
And I think you must read. You have a must read. Section 25 of CRPC talks about the 25A. public. 25A. 25. Yes. Directorate of the Prosecution. So it's a senior post after 7 years. I mean, so I'm not sure. Sorry. Not sure. Okay. So, any other subject in which you are more comfortable? The Evidence Act or Evidence Act. IPC or IPC. IPC also. What is the difference between perjury and forgery? So forgery and forgery. Yes, perjury and forgery. So forgery can be done with the document presenting the wrong document. And what is perjury? Forgery, I don't know. Sorry. Okay. Whether the prosecuting officer is a public servant or not. Yes, so they are public servants. So, who is the public servant? So basically, works under the government. Section 6, I guess. So, there are some points given under Section 6 of the CRPC, if I'm not wrong. Judges and public prosecutor are public servants. Public servant and government servant. So public servant. Okay. My last question. Okay. Justified law or bound by law? These two phraseology is oftenly used in general exception. What is the difference between two? Justified by law. So justified by law means they are judicially bound by law to do something. If example for judges, they are justified by law. By law, they are justified to do the act, which are occasionally not justified. Or sorry, sir. I am mistaken. Bound by law. They are bound by law means they are judicially or by law they are bound to do such thing to prevent any crime, or justified by law means in the current situation in which they are, if they are doing such act, they are justified by law to do that. For example, उदाहरण से मुझे बताइए आप, जिससे मैं समझ सकूं कि ये जस्टिफाइड बाय लॉ है जी और ये सर। बाउंड बाय लॉ। एक संक्षिप्त उदाहरण ओके दीजिए सर। जिसमें। सर अगर एक उदाहरण दिया जाए तो अगर एक्स कोई इंसान है, वो अगर सड़क पे किसी को मार रहा हो या मारने की कोशिश कर रहा हो, अटेम्प्ट कर रहा हो, बी कोई अगला इंसान है, अगर उसे वाई को बचाने में कुछ चोट आ जाती है, ग्रीवियस हर्ट आ जाती है, तो भी वो और या फिर वो उसे अरेस्ट कर लेता है, रोक लेता है, तो द एक्ट ऑफ बी इज जस्टिफाइड बाय लॉ, यू कैन से। तो किसको कहेंगे हम जस्टिफाइड बाय लॉ? अभी मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कुछ काम करना चाहता हूं जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ, तो ऐसा कौन सा काम करूं जो जस्टिफाइड बाय लॉ? इन कंटेक्स्ट ऑफ क्राइम, अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, एक्स एंड वाई के बीच में, झगड़ा छोड़ सर दो, और कोई बात। सर हर जगह और झगड़ा ही नहीं होगा। तो जस्टिफाइड बाय लॉ अगर
सर जस्टिफाइड बाय लॉ में अगर सर फांसी किसी को फांसी की सजा होती है और जो फांसी लगाते हैं वो भी जस्टिफाइड बाय लॉ है, अब उन पे मर्डर के चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि इट इज चलो ओके, जस्टिफाइड थैंक यू बाय। बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। या जायसवाल जी। जी गुड इवनिंग सर। Sir, you are not audible. I think. Sir, I'm not able to hear. जस्ट I वेट think the बेटा, micro. Sure. One second. Sir, you're audible now. सर का माइक दिख नहीं रहा है, जस्ट वेट मिनट। ओम प्रकाश जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट म्यूट करें है उसको। सर। अनम्यूट करें आप, नहीं हो रहा अनम्यूट, मैंने म्यूट करें आप वो। हाँ, या हो अब गया। हाँ हो गया। हाँ। अच्छा ओके। कैंडिडेट का नाम क्या है, जब थोड़ा मैं बता दें। सर सौम्या। सौम्या sir. ओके 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 सौम्या। Yes. अब तो सुन पा रही है मुझे। जी सर, जी सर। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करती हैं। Yes sir. 2018 में आपने लॉ कंप्लीट किया है। जी सर। पिछले 5 साल में केवल प्रिपरेशन किया है आप। ये सब प्रिपरेशन किया। क्या रहा है आपके एफर्ट में, कहाँ तक पहुंची हैं आप। सर मैंने 31st का मेंस दिया था पर मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। सिमिलरली इन 2008 यूपी जुडिशरी का भी मेंस दिया था पर मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। दिस इज द क्या फर्स्ट टाइम लगता है इंटरव्यू के। आपके 5 साल के प्रिपरेशन में आपको लगता है कि आप कहाँ वीक अपने को पा रही हैं। सर आंसर राइटिंग में भी सर उसमें ही कोई गलती हो रही है तभी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूँ। और सर द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ मी मुझे सर सेक्शन नंबर नहीं याद रहते, केस लॉज नहीं। आई ट्राइड, आई एम वर्किंग ऑन अच्छा दैट। सेक्शन आपको याद नहीं रहा। यस सर। चलो ठीक है। अभी अनुज सर ने बहुत सारी चीजें पूछी आपसे, आपको जहां तक याद आ पाए आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड सीआरपीसी के प्रोविजन बता जाइए। तो पब्लिक या मैं प्रोसिक्यूटर आप केवल मेंशन कर दीजिए कहाँ पे क्या चीज है, बिल्कुल शॉर्ट इन शॉर्ट। सर जैसे सर सेक्शन 24 और सेक्शन 25 में जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि आफ्टर 7 year ऑफ प्रैक्टिस आगे के केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस नहीं नहीं देखते हैं। आपने मेंशन कर दिया 24 25 और जो ऐसे ही बताते चलिए, जहां सेक्शन याद आए वहां सेक्शन बताइए, जहां आपको लगे कोई रोल या प्रोविजन है वो बताते चलिए। सर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे सर गवर्नमेंट को या कोई भी केसेस। और और पब्लिक सेशन में सेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेंगे आफ्टर 7 year ऑफ प्रैक्टिस। और हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो किस सेक्शन से कवर होगा, किस सेक्शन में उसका अपॉइंटमेंट होगा। सेक्शन 25। 25।
और एपीपी So that's section 24. 24। ओके, सेक्शन आप भूल लेंगे। पहले कौन आता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी? Sir, sorry, sir. Public prosecutor. पहले ये 24-25 है तो उसमें पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है। तो Sir, no, ये sir. हाई, Public. Yes, sir. हाँ। Sorry, sir. Sorry, sir. I'm a bit और confused. अच्छा, कुछ नहीं, सेक्शन भूल जा रही, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ कहाँ है? तो जैसा कि अभी सर ने बताया सेक्शन 308 में बात की गई है, मैंने पढ़ा नहीं है। 308, अच्छा, वो अप्रूवल से रिलेटेड है, जो एकम्प्लिस है उसका, उसके विटनेस पे जो है से रिलेटेड है। और कहाँ है? सर टू 207 आई गेस, जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट करते वारंट केस में स्टार्ट करते प्रोसीडिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय फर्निशिंग द एविडेंस। ओके, और तो चलो ठीक है, ये प्रोविजन से निकल के जाए कि कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या क्या काम करता है और किन किन मैटर में इन्वॉल्व होता है। अब इसको थोड़ा सा इन सारी चीजों के बाद आप बताने की कोशिश करिए। सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में क्या क्या वर्क करता है? सिर्फ केस फाइल करेंगे और एविडेंस प्रेजेंट करेंगे जजेस के सामने, समन्स भी भेजेंगे, तो ये सारे काम होंगे। ये केस का इंस्टीट्यूशन वो करेंगे और एविडेंस को लीड करेंगे कोर्ट में और सम्मन इशू करेंगे। सर तो करवाएंगे। सम्मन करवाएंगे कैसे, सर किस सर तरह से कोर्ट ही करवा? करे, सर कोर्ट सम्मन करेंगे कोर्ट, इश्यूज, समन अच्छा। कोर्ट करेंगे इश्यूज। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सम्मन में क्या रोल होगा इसका? तो जो कोर्ट सम्मन इशू कर रहा है उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर पिक्चर में कैसे आ रहा है? सर वो एविडेंस वगैरह देंगे जिस जिस बेसिस पे कोर्ट, अगर अदर पार्टीज या चाहे किसी और विटनेस को बुलाना, तो वो समन देंगे उन विटनेस को या उन लोगों को कि नहीं नहीं, विटनेस के। आपने बताया कि इशूइंग अथॉरिटी तो कोर्ट है, सम्मन इशू करेगी कोर्ट, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप इन्वॉल्व कर रही है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये इशुएंस ऑफ सम्मन में किस तरह से इन्वॉल्व, सर वो रोल उसका कोर्ट को, क्या? सर कोर्ट को अवेयर कराएंगे कि इस जो पर्टिकुलर केस चल रही है उसमें और भी विटनेसेस बुलाए जा सकते हैं या और कुछ अगर डॉक्यूमेंट से प्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो अगर कोर्ट को लगे तो फिर उन विटनेसेस को बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। सर यू मीन कि वो प्रेयर करेंगे कि साहब इस विटनेस को और इस डॉक्यूमेंट को सम्मन करिए, उनके प्रेयर पे ही विटनेस। कोर्ट, यदि प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस को कॉल करना है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो कोर्ट से प्रेयर करेगा कि साहब इनको सम्मन कर लिया जाए एज ए विटनेस। विटनेस के ही रूप में बुलाते हैं कि किसी और रूप में? सर समन जा सकता है विटनेस को, और अगर ड्यूरिंग नहीं, प्रोसीडिंग। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट से सम्मन इशू कराने के लिए क्या केवल बस विटनेसेस को ही कॉल करने के लिए समन इशू कराएंगे ना, या और कुछ भी कहीं प्रोविजन है करा सकते हैं? जहां तक मैं जान पा रही हूँ विटनेसेस को। विटनेसेस, ठीक है, अच्छा है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट को रिप्रेजेंट करता, आपने बताया, और प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को लीड करता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये केस को तो चाहे तो अपनी मर्जी के हिसाब से विड्रा भी कर सकता है
सर विड्रॉ कर सकते हैं। अपनी मर्जी के हिसाब से, सर जब अपनी, जैसे जब चाहे तब। सर जब चाहे तब ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर अपॉइंटेड, दे आर डूइंग फॉर पब्लिक, दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और स्टेट, तो जब चाहे तब नहीं कर सकते हैं, बट विद द तो कब? परमिशन ऑफ कोर्ट। सर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। सर अगर अदर पार्टी से वो अगर रिलेटेड है तो दे कैन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट बैक ऑफ कर सकते हैं, टू इंश्योर यहाँ पे कोई बायसनेस ना हो। देखिए, मैंने एक थोड़ा सा, हम लोग उसको बाइफरकेट करते हैं। जब जी सर। चाहे तब, ये जब चाहे तब, इसका क्या मीनिंग है? सर मैं समझ पा रही हूँ जहां तक, जब चाहे तब का मतलब होता है इन मिडिल ऑफ द केस विदाउट एनी रीजन वो केस नहीं छोड़ सकते। इफ देर इज सम रीजन, उनको कोई रीजन देना पड़ेगा विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। कि ये टाइम फैक्टर को नहीं डिनोट कर रहा है कि कौन या स्टेज को डिनोट नहीं कर रहा है कि किस स्टेज पर किस टाइम पे करेगा? जब चाहे तब। whenever he wants। व्हेनेवर ही वांट्स ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। चलो ठीक है, तो आप ही यही बता दो कि कब उसे करना चाहिए, लॉ क्या कहती है, क्या कंडीशन है, और इस पे जो फाइनली अपेक्स कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद जो पिक्चर निकल के आई है क्या है, ये 3-4 पॉइंट विड्रॉल पे, इसको आप बता दीजिए स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन आप मेरी सुन ली है, समझ ली है? जी सर। जी जब सर। जी पूरी सर तरह से बिल्कुल। समझ लीजिए, समझ के तब आप बताइए। जी सर। सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर विड्रॉ कर सकती है सर, बट नॉट आफ्टर द ट्रायल इज स्टार्टेड, मतलब ट्रायल शुरू हो जाने के बाद नहीं कर सकती है विदाउट, अगर कोई जस्टिफाइड रीजन ना हो तो। दो बातें कह रही हैं। जस्टिफाइड रीजन तो किसी स्टेज पे हो सकती है, लेकिन ट्रायल स्टार्ट हो गया है तो जस्टिफाइड रीजन है तो भी नहीं कर सकता। तो सर, आपने हाँ, आपने अभी बताया है कि ट्रायल स्टार्ट हो जाए तो नहीं कर सकता, फिर आप सर कह विद रहे हैं द जस्टिफाइड। with prior permission of court if there is justified reason, नहीं, पहले वो आप पूछा। हम आप हमको अ, बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि ये कब कर सकता है? बिफोर ट्रायल, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर, जो भी हो इसमें आप कंफर्म बताओ ना। और नहीं आ रहा तो बताओ नहीं आ रहा है। सॉरी सर, मैं पढ़ूंगी इसके तो बारे में। नहीं, आपकी बात से तो लग रहा है कि आपको कुछ जानकारी है। भाई एक बात तो तय है ना कि आप, प्रोविजन है विड्रॉल का बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके। जी। जी कहाँ, सर। कहाँ पे है, किस सेक्शन में? सेक्शन, नहीं याद, 321 में है। ओके। ओके दूसरी सर चीज एक है सेकंड। कब कर सकता है, इस पे आप कंफर्म नहीं है, या ट्रायल स्टार्ट होने के बाद नहीं किया जा सकता, ये आप कंफर्म है? नहीं, यस सर कर सकते ट्रायल स्टार्ट होने के बाद विद प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट, और इफ देयर इज जस्टिफिएबल रीजन। अच्छा, प्रायर यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है पहले कोर्ट से परमिशन लेगा कि मुझे केस को विड्रा करना है, आप परमिट करिए तो हम विड्रॉल डालें। ये मीनिंग निकल पाया है? यस सर।
ऐसा तो नहीं है, मुझे तो लगता है कि 321 में ये प्रोविजन है कि विद द परमिशन ऑफ कोर्ट विड्रॉल करेगा, फाइलिंग या तो फाइलिंग अप्लाई के लिए तो नहीं है। तो हो अच्छा चलो सकता है ठीक है। करना पड़ेगा। एक आपने शायद सुना होगा, डिस्कशन में भी चीजें आती रहती है कई बार, बहुत लाइमलाइट में चीजें आ जाती है, किसी भी तरह का क्रिमिनल केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रा कर सकता है, या कोई कैटेगराइज है किस तरह के केसेस को वो कर सकता है? सर स्पेशल केसेस अगर होते हैं और क्रिमिनल केसेस जो होते हैं जिनमें बायसनेस की सर अगर हो सकती है या फिर कोई थ्रेट है उनको, तो इस वजह से क्रिमिनल केसेस और स्पेशल केसेस होते हैं। नहीं, ये स्पेशल केसेस का क्या कोई डिफाइन है क्या, किस तरह के केसेस को स्पेशल कहते हैं? स्पेशल केसेस सर केसेस रिलेटेड टू चाइल्ड पॉक्सो के अंदर सर, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल होता है। अच्छा, उस तरह के केसेस में विड्रॉल नहीं कर सकते? सर विड्रॉल नहीं कर सकते सर, सर विड्रॉ कर सकते सर प्रायर परमिशन। चलो, तो आप अपनी बात पे कायम नहीं रह पा रही है, कंफर्म नहीं है, या आप कुछ टाइम लेना चाहेंगी, या मैं कुछ आगे बढ़ूं दूसरे प्रोविजन पे? सर दूसरी कुछ प्रोविजन। ओके ओके। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो, चूंकि ये आप एपीपी के लिए अप्लाई की है, तो आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रोल, उसका इम्पोर्टेंस, उसका वर्क, उसके लिमिटेशंस, ये आपने तैयार करके नहीं आएंगे? तो मैंने पढ़ा था उनका रोल क्या होता है, सप्लीमेंट, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा चलो ठीक है, हमें बस ये बता दो, ये सीआरपीसी जो है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट अमेंडमेंट करना चाहती है, जी सर। जबकि सेंट्रल सेंट्रल लॉ पहले से मौजूद है, सीआरपीसी बनाया हुआ है पार्लियामेंट में। तो क्या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें अमेंडमेंट कर सकती है? सर कर सकती है, मतलब अगर सर उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, पर स्टेट के अपने कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर में ऐड ऐड ऑन हो सकते हैं हर स्टेट के लिए। यानी जो अमेंडमेंट तो स्टेट करेगी वो केवल उस स्टेट में जी अप्लाई सर। होगा, आपके जी कहने सर। का मतलब तो ये कहाँ है, कैसे ये पावर कहाँ से गवर्न होता है स्टेट को अमेंड करने का, ऐड ऑन करने का? क्या है थियरी, क्या है प्रोविजन, कहाँ है, कहाँ से डिराइव हो रखा है? प्रोविजन सॉरी सर। भाई देखो, लॉ मेकिंग पावर और अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही तो गवर्न होता है। जी सर। जी सर। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट भी तो हैं, ये सर स्टेट सेंट्रल। लिस्ट। अच्छा, तो ये जो सब्जेक्ट है सीआरपीसी, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है या सेंट्रल लिस्ट का, या इसके अलावा भी कोई लिस्ट है? कंकरेंट लिस्ट है सर, थर्ड लिस्ट, जिसमें कर सकती है ओके, स्टेट और तो ये किस लिस्ट में आएगी सीआरपीसी? सीआरपीसी तो सर सेंटर के सब्जेक्ट में आती है सर। सेंट्रल की लिस्ट में आएगी। अच्छा, तो सेंट्रल वाले पे तो यू मीन की स्टेट भी सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट में भी अमेंड कर सकता है? सर अमेंडमेंट करके न्यू लॉज ला सकती है सर सीआरपीसी। सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट पर, सेंट्रल लिस्ट का मीनिंग आप क्या समझ रहे हैं, यूनियन लिस्ट ना?
Yes, sir. Union list. Sorry. Union list. तो उस यूनियन लिस्ट के में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, और कितना है, कितने सब्जेक्ट हैं उसमें? आ, नहीं यार, 47 entries. 47। अच्छा, मान लो 47 ही है, तो उस 47 में एक सब्जेक्ट आपका ये भी है, सीआरपीसी भी। तो उस सीआरपीसी उसमें है, तब फिर ये स्टेट कैसे करेगी सेंट्रल लिस्ट पे, ये बताओ। उस यूनियन लिस्ट में स्टेट कैसे करेगी? तो ये डिवीजन ऑफ पावर के आधार पे ही तो सब्जेक्ट अलॉट हुए हैं। Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने? Yes. आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन भी था, Yes, sir. ध्यान है आपको? Yes, sir. अभी आप तो बता रही हैं सेंट्रल लिस्ट, सारी लिस्ट, तो आप क्यों नर्वस हो रही हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन आप इंडिया तो रीड किया होगा ना भाई, आप Sir, सिविल जज की प्रिपरेशन भी आप कर रही हैं, उसमें तो अच्छा खासा पोर्शन है उसका। Constitution नहीं पढ़ के. अच्छा, अभी पढ़ के नहीं है, पहले पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, आप नर्वस ना होइए। कुछ ऐसा बताओ, जो कोई टॉपिक बताओ जिसमें ये है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके और उसका एक एक चीजों को जो है, जैसे ओनियन छिलते हैं उस तरह से कर लीजिए, निकल आए। बताओ तो कोई, बस यही लास्ट आप जो बताओगे उसी में से मैं डिस्कस करूंगा आपसे। सर कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर नो किसी नहीं, कोई भी कोई भी सब्जेक्ट लॉ से रिलेटेड। लॉ से रिलेटेड कोई भी. सर आईपीसी में मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, मर्डर और कल्पेबल। या सर ओके एविडेंस में एग्जामिनेशन. ओके, ठीक है। तो मैं आपको इसी कल्पेबल, होमिसाइड और एग्जामिनेशन पे आता हूं। जो सेल्फ सुसाइड है, सुसाइड जो है, जो आदमी अपने सेल्फ को ही फिनिश कर देता है, ये किस यस तरह के उसमें आएगा? होमिसाइडल माना जाएगा? यस सर. होमिसाइडल माना जाएगा या सुसाइडल? सर होमिसाइडल नहीं है सर, होमिसाइडल ही होगा. सुइसाइड सर, सुइसाइड भी, क्यों होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग. होमिसाइड का मीनिंग तो आपने बताया कि मतलब होमिसाइड में मोर देन वन पर्सन का कॉन्सेप्ट है, या एक आदमी से भी काम चल जाएगा? killing of a human being, other person, killing of one अदर person पर्सन, by another. यानी विक्टिम या डिसीज के अलावा एक्यूज भी उसमें होना चाहिए ना? Yes sir. सुसाइड में? तो सुसाइड में पर्सन itself वो खुद ही इन्वॉल्व रहता है बस. ओके, चलो, एक कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, कहते हैं कि मर्डर भी कल्पेबल होमिसाइड ही है। Yes sir. आप हमको एक्सप्लेन कर पाएंगे? So, murder is also culpable homicide. यस, सर क्वेश्चन culpable इज दिस। homicide होता है. ओके सर. सर दो फ्रेजेस होते हैं सर, culpable homicide and culpable homicide not amounting to murder. तो जो कल्पेबल होमिसाइड होते हैं वो मर्डर की कैटेगरी में आ जाते हैं. फिर अदर्स आर नन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. सर इसमें डिफरेंस जो होता है डिग्री का होता है सर.
इंटेंशन नॉलेज इसमें भी रहती है, पर मर्डर में सर कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है कि पर्सन नोज कि ये पर्टिकुलर बॉडली इंजरी होगी या उसके एक्ट से डेथ कॉज होगी, उसकी इंटेंशन भी रहती है, उसकी नॉलेज भी रहती है। पर जब हम मर्डर देखेंगे तो यहाँ पे डिग्री ऑफ इंटेंसिटी डिग्री बढ़ जाती है उसकी इंटेंशन की, और उसको नॉलेज भी होती है कि पर्टिकुलर पर्सन है वो किस इसी एक्ट से उसकी डेथ होगी, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी उसका जो एक्ट है वो डेथ कॉज ओके, करेगा। ठीक ठीक है। अब आप ये बताओ कि ये जो इंटेंशन और नॉलेज की बात है, क्या बिल्कुल स्पेसिफिक इंटेंशन होगा या स्पेसिफिक नॉलेज होगा तभी डेथ काज की जा सकती है, मर्डर हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक इंटेंशन और नॉलेज नहीं है तो भी डेथ काज करके मर्डर की जा सकती है? सर डेथ कॉज होकर के मर्डर हो सकता है सर, विदाउट अगर उसे विदाउट एनी स्पेसिफिक इंटेंशन, हाँ विदाउट स्पेसिफिक इंटेंशन, हाँ सर तो ये होगा सर या तो सर ये फिर होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में भी आ जाएगा। नहीं, आई मेरा डू नॉट क्वेश्चन ये है, ओनली ओनली मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं। I say culpable homicide which is amount to murder। तो मर्डर हमको मर्डर आप इलुस्ट्रेट तो आपको इलुस्ट्रेट ये करना है कि विदाउट एनी स्पेसिफिक इंटेंशन और विदाउट एनी नॉलेज। स्पेशल नॉलेज भी मर्डर कमिट की जा सकती है, और आपने कहा नो यस जा सकती है। नो तो आप नो एक सर, नहीं, सर डेथ कॉज की जा सकती है अगर इंटेंशन नहीं है तो भी, पर फॉर मर्डर नॉलेज और इंटेंशन एक नेसेसरी एलिमेंट है सर। आप क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनिए कि बिना स्पेसिफिक इंटेंशन के, विदाउट एनी स्पेसिफिक इंटेंशन और विदाउट हैविंग एनी स्पेशल नॉलेज, मर्डर में बी काज्ड। आप नो यस सर, या नो? नो। पहले आपने कहा यस। नो सर आप डेथ सही कॉज है या पहले? आई सर आप सही हूँ, क्योंकि मर्डर कॉज करने के लिए और डेथ कॉज करने की ऐसी बॉडली इंजरी जो डेथ हो जाए, इसका नॉलेज और इंटेंशन दोनों होने चाहिए। अब मैं ये कहता हूं कि आपका ये आंसर गलत है, और मैं एक इलिस्ट्रेशन दे रहा हूं, आप बताइए कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। ओके सर। 1,000 लोगों की भीड़ सर मोहम्मदन लीडर हैदराबाद के हैं, लीडर हैं, और हमेशा मुस्लिम्स की बात करते हैं। वो आए हुए हैं दिल्ली में। 1,000 हिंदुओं की भीड़ जो है उनको घेर लेती है जिस मकान में है। बाहर दिए वहां पे सिक्योरिटी के लिए तमाम चीजें रखी गई है, एक तोप भी रखी हुई है। सर अब ये लगता है कि वो मिस्टर एक्स जो है मुस्लिम लीडर की जान बचेगी नहीं, और वो उस भीड़ में बिना किसी को डेजिग्नेट किए, आइडेंटिफाई किए हुए तो का गोला दाग देते हैं, यानी फायर कर देते हैं, जिससे 5 लोगों की डेथ कर देती है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में यदि सेल्फ डिफेंस को हटा दिया जाए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस को हटा दिया जाए, तो क्या ये मर्डर हो सकता है? सर ये मर्डर हो सकता है, क्योंकि भले वो इंटेंशनली किसी पर्टिकुलर इंसान की डेथ कॉज नहीं करना चाहे, पर उन्हें नॉलेज है कि बाय हिज एक्ट डेथ कॉज होगी यहाँ पे किसी की। यानी यहाँ बिना स्पेसिफिक इंटेंशन के भी मर्डर हो सकता है। सर नॉलेज है यहाँ पे कि ये जो इस पे एक्ट है। यहाँ स्पेसिफिक नॉलेज इस बात का नहीं है कि वही 5 लोग मारे जाएंगे। सर किसी तो क्या इस वही 5 लोग नहीं, पर उन नॉलेज है कि बाय हिज एक्ट कोई बॉडली इंजरी होगी जिससे डेथ कॉज होगी। तो मर्डर डिफाइंड है सेक्शन 300 में। आप 300 और टू उसमें चार
चार चार क्लासेज हैं उसमें, उसके चार पार्ट हैं। आप किस पार्ट में इसको रखना चाहेंगे? सर मैं एक क्वेश्चन अश्योर होना चाहूंगी, उस भीड़ में सर वो ऐसे ही तोप चला देते या फिर इंटेंशन है उनका कि वहाँ कुछ पर्टिकुलर 5 लोग हैं जिन्हें वो मारना चाहते हैं और जिनकी नहीं, वजह मैंने से। बताया, मैं चलो ये बता देता हूँ कि भाई वहां पे एक थोड़ा चेंज करके इसी प्रॉब्लम को बताता हूँ कि क्या अच्छा। होता है कि मुस्लिम लीडर ने हिंदुओं के बारे में कुछ एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज किया है, और ओके। वो दिल्ली आए हुए हैं और बहुत चाक चौबंद वहां पे अपनी सिक्योरिटी का भी रखे हुए हैं, और केवल वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पे जी सर। एक डिमॉन्स्ट्रेशन 1000 लोगों के द्वारा होता है। और वो फिर नारेबाजी करते हैं, स्लोगन्स वगैरह वो करते हैं, और ये क्या होता है कि ये मिस्टर एक्स जो मुस्लिम लीडर है ये नाराज हो जाते हैं, और अपने आदमियों की मदद से क्या होता है वहां जो रखा हुआ तोप उससे फायर कर देते हैं, इसमें 5 लोगों की डेथ हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम में आप बताइए, 300 के चार जो पार्ट हैं उसमें किस में कवर होगा, वेदर सर ये मर्डर होगा या नहीं, यदि हाँ तो किस में कवर होगा? ये मर्डर होगा और ये 301 में होगा विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और bodily injury which likely to cause death. 304 में नहीं होगा, 300 के चौथे पार्ट में। सर हो सकता है सर by doing an act which in all probability cause death. तो तोप चलाने पे मैक्सिमम ऑल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सर डेथ कॉज करेंगे। सॉरी सर 300 तो 4 हुई। 300 का 4 होगा या 1? 4 सर 4। 4 होगा, ओके। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर वो जो भीड़ थी उसने इतना ज्यादा ऑफेंसिव स्लोगन्स किया है, वो जो बैरिकेडिंग के बार्स को तोड़ के हाथ में मशाल लिए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये अपनी घबराहट में वहां पे तोप के गोले दाग देते हैं, देन अब क्या होगा? उसमें 5 लोग मारे जाते हैं। अपनी घबराहट में हाँ। सर तो भी मर्डर होगा। क्यों? सेक्शन 100 आईपीसी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में डेथ काज करने तक को परमिट करती है, उसको जस्टिफाइड मानती है। तो यहाँ तो सर लेकिन हम्म जी सर। तो क्या सेक्शन 100 का बेनिफिट मिलेगा उन्हें? सर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ कोई एक रीजन नहीं है, बस उनके डर की वजह से कि इस वजह से सिर्फ उनको 100 का ये नहीं मिल सकती है सर। सपोज करिए कि आप वहां होती, आपने जी कुछ कह दिया प्रोटेस्ट में, इतने लोग 1000 के लोग हाथों में मशाल लिए हुए आपके घर की तरफ बढ़े जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि यदि मेरा घर जला दिया जाएगा तो मेरी जान जा सकती है या नहीं? ऐसा आपको एंटिसिपेशन हो सकता है या नहीं? सर एंटिसिपेशन ऑफ डेथ है तो, लेकिन सर है तो उस नहीं? एक्सटेंट तक। आप इन दैट वेरी सिचुएशन सपोज यू यस आर सर। देयर, तो आप ये जो एंटिसिपेशन होगा ये केवल आपका और दूसरे का नहीं है ना, ये तो एक रीजनेबल पर्सन का एंटिसिपेशन। आप बताओ, आप उसमें आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करना चाहेंगे या नहीं? सर बिल्कुल यूज करना चाहिए। तो फिर वो कैसे फिर मर्डर होगा उस कंडीशन में भी? सेक्शन 100 से आप कैसे उसको डिप्राइव कर रही हैं? चलो ठीक है, तो मैं बस अब आगे नहीं आपसे पूछने वाला हूं, पर मैं ये पूछना चाहता हूं क्या आप इस बोर्ड में
बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके फेस करने आई हैं, या आपको लगता है कि अभी हमारे सेकेंड थर्ड चांस में भी दे लेंगे तब और अच्छा करेंगे? सर सेकंड चांस में बिल्कुल मैं अच्छा करूंगी सर। आई वाजंट अभी प्रिपेयर हो, प्रिपेयर्ड। अभी प्रिपेयर हो कि नहीं आई थी? नो सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओझा सर देखें थैंक यू आप। सो मच सर। ओके। शौर्य, शौर्य। Sir, just a second, sir. Pranam, sir. गुड इवनिंग सर। Very good evening. uh, Tell me, what is the prosecution machinery's hierarchy in different levels of the court? Prosecution machinery, direct Directorate of Prosecution, Public Prosecutor, then Assistant Public Prosecutor. That is in which court? In every court, this is the hierarchy that is followed, or it changes with the level of court? So For that is the instance, hierarchy only. the court in which you are seeking your posting as an APO, what is the hierarchy of that court? What is the team constitution of that prosecution in that court? I'll be working in a magistrate court. Okay. And Magistrate how court. many other members of the team would be there from the side of the prosecution? I'm not sure about it. Okay. Okay, fine. You must have heard about the ground of private defense. So is this an absolute ground, or are there certain reasonable restrictions or exceptions to it? So there are certain reasonable restrictions or exceptions to it, such as private defense cannot be used against voluntarily provocation if the provocation voluntarily is up, and secondly, if any act is done by a public officer, like a police officer, while during his duty in color of his office, then private defense is not available. Okay. True. Is there some does the statute also take care of some sense of proportion there? When can you actually invoke the ground of private defense? Anybody who enters your home and you feel threatened and you can kill that person, is it so? No, sir. If I find there is some threat to me or threat to my family or property, Okay. then one can. And what if some guest is sitting in your house? Can you still use private defense? If the guest If is threatened. someone, if the guest, yes, sir, yes, sir. If the guest is not in your house, but in the neighbor's house, or suppose it is a neighbor's case, not your own case, Yes, can you still invoke the ground of private defense later on? if I am there, I'm present there, and if I can see there's some kind of harm or bodily injury to them or their child or their relatives, then I can use private defense. Very well, very well. Okay. Do you think that there are ways in which prosecution is also somehow responsible and accountable for the huge pendency in the courts of this country? I cannot say completely. It depends upon the person. We cannot say the whole community prosecution. But one person who is in a particular case, if he is not willing to deliver the justice timely or not taking care of it properly, I can say. Okay. Did I say completely? I was just asking, are there any ways in which you think? Tell me one way. The ways.
Tell me one One way. way. Yes, you should have listened to the question in the first instance itself. Any one way when you think that you can. My question is actually reformative or remedial. So if you know those ways, those areas where you can assess the court in smooth disposal and faster disposal, then only obviously you have to know the problem beforehand for bringing in a solution. So as an APO, you can improve upon those areas. That was the perspective or context behind the question. So tell me how prosecution can help in assisting the court for faster prompt disposal of the cases. Can I take a moment? Yes, sure. Take your time. Yes, they can help the police or other legal agencies to collect the evidence and be present on the date on which court has called them. If I Right. am the prosecuting officer, I'll do the same, filing cases or be present at the date on which court has called and bring all the evidence necessary. Okay, very well. Tell me, you are in a prosecution case and the hearing is going on, and the police informs you, and you are supposed to inform the court that the accused is not cooperating in collection of blood samples, DNA samples, etc. How would you convince the court that the accused cannot resist collection of samples on the ground of his right against self-incrimination? Can an accused take that ground and refuse for sample collection? Or just to assist you, or right to privacy? Can an accused take these grounds? Sir, the accused can take this ground right of privacy and refuse, but I read some section in evidence, I guess self-incrimination के against भी. I mean, what is your final compel. take? Is it court can compel? Of course, court can compel. Is it a right enforceable, actually enforceable? That no, you cannot take evidence from my person. No, sir. Doesn't appeal to far common as, sense, isn't it? Even if you do not know the exact provision or the exact ruling of the court, it doesn't appeal to common sense. And the common sense answer Yes. would be what? Because you are not being compelled to admit something. You are not being compelled to lead evidence against you. You are only being requested to, you are being asked to allow the evidence process to happen. Whether it goes in your favor or not, that is a subsequent stage. Now, until that, you cannot say that it is against you. Isn't it? So even if we don't know the provisions, reasoning can help us. Okay, let's go ahead. Yes. Who's an expert witness? Have you heard about this term? Yes, I've heard, sir. Expert witness are those who have some expert knowledge or studied something in a particular field, like so handwriting expert or Very well.